Go on. Dear students of class 11th, today our topic is essay writing. Introduction. Yes, today's topic's main points are definition or meaning of essay, character of good essay, classification, synthesis on essay writing, structure of essay, yes, summary of method of procedure. Yes, dear students. Let me define what the word essay means. Yes, essay is defined as a literary composition on any subject. Yes, the word essay is defined as a literary composition. Literary composition on any subject. On any subject. It is a written composition giving expression to one's own personal ideas or opinions on some topic. तो हम कहेंगे एक ऐसे एक तहरीरी कंपोजिशन है जिसमें इजहार किया जाता है किसी शख्स की जो ज़ाती ख्यालात हैं या आरा या राय हैं किसी टॉपिक पर किसी मौजू पर आप लिटरेरी उसका क्या मायने है यस द वर्ड ऐसे लिटरेरी मीन्स एन अटेम्प्ट यानी हम एक अटेम्प्ट करते हैं कोशिश करते हैं किसी चीज़ को बयान करने के लिए उस पर अपनी आरा देते हैं राय देते हैं ख्यालात का इजहार करते हैं नाउ द essay we write in school the essay you write at school or trial exercise at school जो हम essay लिखते हैं ये ट्रायल एक्सरसाइजेस होते हैं ट्रायल एग्जाम्स होते हैं या अटेम्प्ट्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं अपने ख्यालात एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स इन गुड इंग्लिश बट दे आर रिटन ऑन अपॉन ए थीम और सब्जेक्ट yes dear students. Now, let me repeat for you people. The word essay is defined as a literary composition on any subject. It is a written composition giving expression to one's own personal ideas or opinions on some topic. Literal meaning. The word essay literally means an attempt. The essays we write at school. They are trial exercise attempt to express our thoughts, your thoughts in good English, written upon a theme. यानी उनका एक थीम होता है मौजू होता है सब्जेक्ट होता है now characteristics of a good essay characteristics of a गुड ऐसे जो एक अच्छा ऐसे होता है इसके कैरेक्टर्स इसकी खूबियां क्या है बट ए गुड ऐसे रिटन एट स्कूल नंबर 1 इज यूनिटी यस नंबर 2 इज ऑर्डर यस नंबर 3 इज ब्रेविटी yes number 4 is style number 4 is style and number 5 is the personal touch yes students
Let me try to explain to you each characteristic. Now, characteristic of a good essay written at school or school essay. Good school essay are unity. As you know, in case of paragraphs, likewise in an essay must be a unity, developing one theme with a definite purpose. यानी जो ऐसे है इसमें यूनिटी होनी चाहिए, एक थीम ये डेवलप करे जिसमें एक खास पर्पस हो, दो ट्रीटेड इन ए वेराइटी ऑफ वेज, जिसको हम ट्रीट करेंगे मुख्तलिफ तरीकों से एंड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, और हम उसमें मुख्तलिफ आरा मुख्तलिफ जो नजरियात वो पेश कर सकते हैं. Number second is order. Yes, what is order? The essay should follow a certain ordered line of thought and come to a definite conclusion. यानी जब ऐसे लिखना है तो इसमें एक मुकर्रर लाइन ऑफ थॉट, मुसलसल लाइन ऑफ थॉट होनी चाहिए और उसमें एक मखसूस कंक्लूजन होना चाहिए. दैट इज जो लाइन ऑफ थॉट होनी चाहिए ये स्टार्ट से एंड तक होनी चाहिए. नंबर थर्ड यू नो इज ब्रीविटी और इख्तिसार. जो हम स्कूलों में ऐसे लिखते हैं स्कूल एसेज, दे शुड नॉट बी लॉन्ग. यस, दे शुड हैव a permitted word length, usually 150 to 200 or up to 300 words. So an essay should be brief, it should be concise. Number 4 is style. जो स्टाइल होना चाहिए एक गुड ऐसे का, जो लैंग्वेज होनी चाहिए उसमें, और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए. दैट शुड बी सिंपल, दैट शुड बी डायरेक्ट एंड नेचुरल. कहते हैं ना, द सीक्रेट ऑफ क्लियर राइटिंग इज क्लियर थिंकिंग. जब हम अच्छी तरह सोचेंगे तो वही वेद है, राज है अच्छी लिखाई का. लेट मी टेल यू अगेन, द लैंग्वेज एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ एन essay should be simple, direct and natural. The secret of yes, the secret of clear thinking is secret of clear writing is clear thinking. Yes, dear students. Now, number 5 is the personal touch. जब भी आप कोई मजमून लिखेंगे उसमें आप अपने ज़ाती जो फीलिंग्स हैं, अपने जो ख्यालात हैं वो होनी चाहिए. Yes, dear students. An essay should reveal the personal feelings and opinions. जो मजमून होगा ये रिवील करेगा आपकी ज़ाती जो जज्बात हैं, आरा हैं उनको. हाँ, इसमें इट शुड हैव हिज और हर इंडिविजुअलिटी इन इट. इसमें वो अपना मखसूस अंदाज, इनफरादा अंदाज पेश करेगा. हाँ, उसमें सिंसियरिटी का नोट होना चाहिए. दैट देयर बी अ नोट ऑफ सिंसियरिटी इन ऑल दैट यू राइट. Yes, dear students. 3 features are necessary in good essay. Features in a good essay. Number 1, suitable subject matter. Suitable subject matter. Number A. Number B, proper arrangement. And number C, adequate power of expression. Adequate power of
expression. Yes, जो कंपोजिशन इसके जो फीचर्स हैं, एक तो सुटेबल सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस पैराज होना चाहिए और एडुकेट पावर ऑफ एक्सप्रेशन। जो आप इजहार राय करेंगे वो मौजून आना चाहिए। Yes, dear students, now classification of essays. Yes, classification of essays. Classification of essays. जो एसेज हैं उनके टाइप्स हैं, इनकी दर्जाबंदी, ग्रुप बंदी, यानी कितने अक़साम हैं। नंबर 1 इज रिफ्लेक्टिव एसेज। यस डियर स्टूडेंट्स, जो रिफ्लेक्टिव एसेज होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन या थॉट्स होते हैं किसी टॉपिक पर। आमतौर जो टॉपिक होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल हैबिट्स, क्वालिटीज, सोशल, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक टॉपिक्स, रिलीजियस टॉपिक्स, थियोलॉजिकल टॉपिक्स, ये हो गए रिफ्लेक्टिव। अगेन आई विल टेल यू, जो रिफ्लेक्टिव एसेज होते हैं उनमें रिफ्लेक्शन या थॉट्स होते हैं किसी थीम पर, किसी सब्जेक्ट पर, जो आमतौर एब्स्ट्रैक्ट नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल हैबिट्स, क्वालिटीज, सोशल, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक, थियोलॉजिकल, जो रिलीजियस टॉपिक्स होते हैं। नंबर टू है नैरेटिव एसेज। यस, it is simple. These consist of narration of some event or series of events. ऐसे एसेज में क्या होते हैं, किसी वाक़े पर नरेशन होती है या जो सीरीज ऑफ इवेंट, सिलसिला होता है, उनमें उन पे नरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकल स्टोरीज और इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल द रेन ऑफ अकबर, the reign of Aurangzeb, likewise reign of Ashoka. There are biographies. For example, the life of Babur, incidents. For example, a festival incident, accident. For example, a fire accident or a misfortune like a flood. These are narrative essays. Number 3 is descriptive essays. Descriptive essays. Yes, these include description of some place. किसी प्लेस या किसी चीज को हम बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स और मिनरल्स और टाउन्स और बिल्डिंग्स और ऑस्पेक्ट्स फिनोमेना लाइक वोल्केनोज एटसेट्रा एटसेट्रा। There can be manufactured articles, for example, manufacturing of silk, paper, motorcycles, etc., etc. These are descriptive essays. Yes, dear students. Then fourth number is expository essays. Expository essays. Yes. They consist of explanation of some subject. What they consist of? Explanation of some subject. For example, institutions, industries, scientific topics, literary topics. For example, nature of poetry, history of fiction, history of drama, so on and so forth. Yes, dear students. Then there is fifth type of essay, that is imaginative.
Yes, dear students, imaginative essays. Yes, imaginative essays. It includes subjects such as the feelings and experiences. What the writer has to do here, the writer has to, yes, yes, in the imaginative, the writer has to place himself or herself in an imagination with no actual experience. For example, someone says, "I will write a composition or an essay if I were a king, if I were prime minister, if I were the chief minister of state, or the autobiography of a river, of an elephant, or the autobiography or the river Jhelum, etc., etc." These are imaginative essays. Let me again repeat classification essays. We discussed reflective essays, narrative essays, descriptive essays, expositive essays, imaginative essays. Now, dear students, now hit us on essay writing. Hit us on essay writing. जो मजमून लिखना है, ऐसे लिखना है, उसके लिए कुछ हिंट्स, यानी कैसे हम अच्छा ऐसे लिखेंगे. नंबर 1 इज जनरल प्रिपरेशन. जनरल प्रिपरेशन, यस, general preparation. Get prepared by reading and by training the power of observation. Always go on reading. Always train yourself, train your power of observation. How it is general preparation achieved? Number A is reading. Yes. Number B is observation. Observation. And number C is conversation. Conversation. Yes, dear students. Yes, dear students. Now reading. Regarding general preparation, you should read. Always fill your mind with fine thoughts and accurate information. Yes, go on reading. You will fill your mind with fine thoughts and accurate information. यानी अपने आप जहन को भरेंगे अच्छे अच्छे ख्यालात से, उम्दा ख्यालात से और सही इंफॉर्मेशन से. ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? यू कैन ऑलवेज फाइंड प्लेंटी टू से ऑन मोर सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा उस पे आप बहुत कुछ, यस, इस पे आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, कह सकते हैं. देन देयर इज ऑब्जर्वेशन. Dear student, you know all knowledge does not come from books or reading other people's descriptions. Yes, it is surprising what a lot may be learned from personal observation. जब आप ज़ाती तौर मुशाहिदा करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. अपने ज़ाती तौर मुशाहिदा करने से, जब आप अपने सेंसेस इस्तेमाल करेंगे, अपने हवास इस्तेमाल करेंगे, मसलन साइट, हियरिंग इस्तेमाल करेंगे, फीलिंग इस्तेमाल करेंगे, तो आप बहुत कुछ थ्रू ऑब्जर्वेशन सीख सकते हैं और फिर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. Yes, and number C regarding general preparation is conversation. Conversation.
What should we do? Listen to people's conversation. लोगों की बातें सुनते जाओ, उनके साथ बहस करते जाओ। तो डिस्कस करो अदर्स के साथ, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए एक्सप्रेशंस, इबारात मिलेंगे, और इस तरह बहुत कुछ सीख सकते हैं। Yes, listen to people's conversation, discuss with others. You can get new words, new expressions, and so you learn much. Now, it is on essays. Point second is spatial preparation. Yes, spatial preparation. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऐसे लिखना है किसी स्पेशल या खास पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। हमें उसके लिए स्पेशल तैयारी होनी चाहिए, खास तैयारी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? यस, नंबर ए, डिफाइनिंग द सब्जेक्ट। डिफाइनिंग द सब्जेक्ट, जो आपको टॉपिक होगा, थीम होगा, उसको आप क्लियर करेंगे। Defining the subject, it means what it is and what it is not. ये क्या है, what it is, और what it is not, ये है क्या या क्या नहीं है इसमें। दूसरा इसमें है कलेक्टिंग मेटीरियल। कलेक्टिंग मेटीरियल, और मेटीरियल जमा करेंगे कंपोजिशन के लिए। तो इसमें आपको 3 चीजें जहन में रखनी है। क्या क्या? रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है इसको आप रीड करेंगे। यस। सेकंड है कलेक्टिंग, कलेक्शन, मटेरियल कलेक्ट करेंगे, क्या क्या आपको जरूरत है, कलेक्शन। फिर इसमें आप इसको दे देंगे नंबर, जो जो आइडियाज आपको आ गए, फैक्ट्स आ गए, उनको दे देंगे नंबर। फिर इसको एक बार फिर आप ध्यान में रखेंगे, सिलेक्शन करेंगे, यानी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, वो सिलेक्ट करेंगे। उसमें आप क्या करेंगे, हेडिंग दे देंगे वगैरह, उनको तरतीब दे देंगे। हो गया ये। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप रखेंगे, और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उनको डिलीट करेंगे। देन थर्ड पॉइंट इज फ्रॉम स्पेशल प्रिपरेशन, logical arrangement. Yes, logical arrangement। लॉजिकल अरेंजमेंट में क्या करेंगे, आप जो पॉइंट्स आपने किए उनका आउटलाइन बनाएंगे। मेकिंग आउटलाइन, मेकिंग आउटलाइन, आप आउटलाइन बनाएंगे, यानी मेन हेडिंग्स जो होंगे वो लिखेंगे सीरियल के हिसाब से। पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पर कौन आएगा। Yes, dear students, and filling in the outline, filling in the outline, जो आउटलाइन है इसको भर देंगे। या उर्दू में मैं कह सकता हूँ, क्या कहेंगे, पहले आउटलाइन आप खाका तैयार करेंगे, फिर उस खाके में रंग भरेंगे और अपना कंपोजिशन मुकम्मल करेंगे, ऐसे मुकम्मल करेंगे। हो गया ये हिंट्स ऑन ऐसे राइटिंग। नाउ देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे के खास मतलब जो जुज हैं।
Yes, dear students, structure of an essay. एक ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी साख्त क्या है? आमतौर इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट है बॉडी एंड थर्ड पार्ट इज कंक्लूजन। Yes, dear students, let me throw light on the first part, introduction. इंट्रोडक्शन और इन उर्दू तारुफ, ये मुख्तसर होना चाहिए। ये एक सेंटेंस हो सकता है, एक मुख्तसर पैराग्राफ हो सकता है। तो ये क्या होना चाहिए? ब्रीफ, इसमें एक सेंटेंस हो या एक पैरा हो, लेकिन मुख्तसर होना चाहिए। जैसे एक मकान के लिए दरवाजा होता है, एंट्री होती है, इसी तरह एक कंपोजिशन के लिए होता है इंट्रोडक्शन, एक ऐसे के लिए होती है इंट्रोडक्शन। Yes, dear students. Now introduction, it should be brief. It can be one sentence or it can be a short paragraph. It is like the front door of a house. It is like the front door of a house. Yes, dear students. Now the body. The body is really the essay itself. It is really the essay itself. असल में तो मजमून या essay या इंशाया यही होता है जो बॉडी होती है। Yes, dear students, ये क्या होना चाहिए? ये वेल कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, इसमें पैरास होना चाहिए। वेल कंस्ट्रक्टेड, यस, इसमें मुख्तलिफ पैरा होनी चाहिए। यस, इसमें आप सीरीज हिसाब के मतलब हिसाब करके लिख सकते हैं। पहले कौन सा पैराग्राफ लिखो, जैसे आपने आउटलाइन बनाई होगी उसके हिसाब से, फिर दूसरा, फिर तीसरा पैराग्राफ। लेकिन पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग सेंटेंस होना चाहिए वो लास्ट लाइन वाली पैराग्राफ के लास्ट में कंक्लूड करना चाहिए। Yes, so it is like a house itself. जिस तरह एक पूरा मकान होता है, इसी तरह एक कंपोजिशन के लिए, एक ऐसे के लिए बॉडी होती है, हाउस itself. Third is शाबाश, third is the conclusion. ये कंक्लूजन बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कंपोजिशन का या ऐसे का जो एंड होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई यानी जो कंपोजिशन या ऐसे कोई पढ़ेगा वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसने क्या स्टार्ट किया, क्या बॉडी लिखी थी, और कंक्लूजन जो दिया है ये उसको मुतमईन करना चाहिए। लेकिन ये जो कंक्लूजन, इट शुड नॉट बी एब्रप्ट, ये अचानक नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक द एग्जिट और बैक डोर ऑफ ए हाउस। जैसे मकान के लिए एग्जिट होता है या बैक डोर होता है, इसी तरह एक कंपोजिशन के लिए क्या होता है? कंक्लूजन होता है। Yes, dear students. Yes, dear students. Hope you are not sleeping. You are active. Yes, dear students. Let me read for you the summary for writing a good essay. So let me brief. While writing a summary, what method of procedure you can follow? There are 8 points you should keep in mind.
Number one, clearly define your subject in your own mind. Think over it until some idea comes into your mind about this subject, and jot the pointers down on paper as they come in your mind, giving them numbers. Third point is classify these points in groups under suitable headings. Those which are not suitable, reject them, delete them. Now, fourth point is arrange these headings or group of lines in a bare outline, यानी खाका बनाओ। फिर इसके बाद क्या काम करना है आपको, फिल द आउटलाइन मेकिंग ए फुल आउटलाइन। अब इस खाके में रंग भरना है और इसको आप शाबाश, जिस तरह आपको इस साल कंपोजिशन होंगे 11th में, आपको आउटलाइन होगा। अब आपको आउटलाइन डेवलप करनी होगी एक एसे में। उसके बाद क्या करेंगे आप नंबर 6 अपना ऐसे लिखना शुरू करो। इसको डिवाइड करो पैराग्राफ्स में। आपको मालूम है 7th पॉइंट जो ऐसे है, इसमें आएगा आपको इंट्रोडक्शन, इसमें आएगा आपको बॉडी, इसमें आएगा आपको कंक्लूजन। जैसे आपको मालूम है इंट्रोडक्शन जो होगा ये कैची होना चाहिए, अरेस्टिंग होना चाहिए, और जो पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो बॉडी होगी कंपोजिशन की, ऐसे की, उसके जो पार्ट्स हैं उनकी प्रॉपर प्रपोर्शन होनी चाहिए, यानी जितने पॉइंट्स ऑफ हैं उनको मुनासिब वेटेज दीजिए। यस, प्रॉपर वर्ड्स चूज कीजिए, अच्छे सेंटेंस चूज कीजिए और अच्छे पैराग्राफ्स बनाइए। उसके बाद 7वें पॉइंट में ही कंक्लूजन जो है ये इफेक्टिव बनाओ, ये सेटिस्फाइंग बनाओ। शाबाश। 8वां पॉइंट जो ध्यान में रखना है, ऑलवेज राइट इन ए सिंपल, कंसाइज, क्लियर, डायरेक्ट एंड नेचुरल स्टाइल। जो आप स्टाइल इस्तेमाल करेंगे कंपोजिशन लिखने में, वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, मुदल्लल होना चाहिए, वाज़िह होना चाहिए, रास्त होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। Inshallah, in next lecture we will try to attempt some outlines and develop them into, inshallah, into essays. Hope good for all people. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.